हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 290 यानी संविधान का अनुच्छेद 290। तो ठीक है दोस्तों, चलें पढ़ें 290 आर्टिकल। ठीक है, 290 आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में पढ़ूंगी। 290 एंड 290A। संविधान का अनुच्छेद 290 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ूंगी। Constitution's article 290 article says about adjustment in respect of certain expenses and pensions. 290 article says about adjustment in respect of certain expenses and pensions. Where under the provisions of this constitution, the expenses of any court of commission or the pension payable or in respect of a person who has served before the commencement of this constitution under the crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the union of state are charged on the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state, then if A, number A, in the case of a charge on the consolidated fund of India, the court or commission serves any of the separate needs of a state, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a state, or number B, in the case of a charge on the consolidated fund of a state, the court or commission serves any of the separate needs of the union or another state, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the union or another state, there shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state, as the case may be, the consolidated fund of India or the consolidated fund of the other state. Such contribution in respect of the expenses or pension as may be agreed or and may in default of agreement be determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India. 290A article says about annual payment to certain Devas Som funds. A sum of 46 lakhs and 50,000 rupees shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state of Kerala every year to the Travancore Devas Om fund, and a sum of 13 lakhs and 50,000 rupees shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state of the Tamil Nadu every year to the Devas Om funds established in that state for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that state on the first day of November 1956 from the state of Travancore, Cochin. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है।
संविधान का अनुच्छेद 290 बताता है कि कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन, कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन की बात करता है संविधान का अनुच्छेद 90। जहां तक संविधान के उपबंधों के अधीन जहां तक संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात संघ के या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, संदेय पेंशन भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पर भारित है, वहाँ यदि नंबर का भारत की संचित निधि पर भारित होने की दशा में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है, या नंबर खा किसी राज्य की संचित निधि पर भारित होने की दशा में वह न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है, तो यथास्थित उस राज्य की संचित निधि पर अथवा भारत की संचित निधि अथवा अन्य राज्य की संचित निधि पर व्यय या पेंशन के संबंध में उतना संदान जितना करार पाया जाए या करार के अभाव में जितना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे भारित किया जाएगा और उसका उस निधि में से संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 290 का बताता है कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय प्रत्येक वर्ष 46,50,000 रुपये की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से तिरुवांकुर देवस्वम निधि को संदत्त की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 13,50,000 रुपये की राशि तमिलनाडु राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी। उस निधि में से 1 नवंबर 1956 को उस राज्य को तिरुवांकुर कोचीन राज्य से अंतरित राज्य क्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम निधि को संदत्त की जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो अब मैं इसके बाद में पढ़ूंगी अनुच्छेद 291 अनुच्छेद शासकों की निजी थैली की राशि। जो शासकों की निजी थैली की राशि थी उसको संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा निश्चित कर दिया गया। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार देना और अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार देना। तो अगले ये 3 अनुच्छेद में पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।